morning students of class 9. Today your new session 3rd of quadrilateral. Yesterday we discussed about the example 1, 2 and 3. Now we will start with example 4. This is the most important example for examination point of view. What is example 4? That is AB and two parallel lines L and M. This is a two parallel line L and M. This is a transversal line intersect P. Show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle. उसने कहा जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं ये इनके बाइसेक्टर जहां मिलते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बनता है. इसे हमें क्या प्रूव करना है? दैट इज रेक्टेंगल. दिस इज अ रेक्टेंगल. ए बी, दिस इज सी एंड डी. To prove ABCD is a rectangle. Rectangle. What is the properties of rectangle? Opposite sides are equal and each angles are 90. तो वही प्रूव करेंगे हम. Proof is. देखिए बेटे, we know that L parallel to M. L parallel M का, therefore angle A 100% angle C के equal होगा. Why? Yes, alternate interior angles. Is it clear? अब बेटा इसका half of angle A is equal to half of angle C. Why? AB and CD are bisector. मैंने कहा था इसके interior angles का bisector है. So half of angle A, angle 1, half of angle C, that is 2. But these are also interior angle, alternate interior angle. So both line जहां पर ये बन रहे हैं are parallel. AB parallel to CD. AB parallel होगी CD के. Similarly, we can prove क्या कि AD parallel to BC. AD parallel BC. अब बेटे ये AB parallel होगी CD के और AD parallel होगी BC के. So it is opposite sides are parallel, so it is parallelogram by equation first and second. Is it clear? Equation first और second से ये क्या बन गए? पैरेललोग्राम बन गए. और पैरेललोग्राम की opposite sides क्या होती है? Equal. So AD equal to BC and AB equal to CD. हाफ पार्ट प्रूफ हो गया बेटे. opposite sides मैंने क्या दिखा दिया आपस में? Equal दिखा दी. Is it clear? Now अब मैं प्रूव करूंगा each angle is 90. Again L parallel to M, so angle A plus C is 180. Sum of A plus C is 180. क्यों? Sum of co-interior angle. Now half of angle A half कर दीजिए. Half of angle C, half of 180 is 90. Half of angle A that is 3. Half of angle C that is 2. Already था is 90. Reason is AD and CD are बाइसेक्टर. जब तक बाइसेक्टर नहीं हम तो हाफ कर सकते हैं ना डबल. इज इट क्लियर? अब ये ट्रायंगल दिख रहा है. इन ट्रायंगल एडीसी तीनों एंगल का सम एंगल 2 प्लस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 180. नाउ इट इज 90 प्लस डी इज इक्वल टू 180. प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस. सो एंगल डी इज इक्वल टू 90. सिमिलरली वी कैन prove angle A, B, C and D is equal to 90. All angles are 90 and opposite sides are equal. So by equation A and B opposite sides equal हो गई और हर एंगल 90 का हो गया. तो क्या बन गया? This is rectangle. So ABCD is rectangle. ये हमें प्रूव करना था बेटे. Is it clear? चलिए. Now our next question. That is example 5. What is example 5?
Now come on the example 5. Yes, show that the bisector of angle of a parallelogram forms a rectangle. Again, मुझे ये प्रूव करना है. This is a parallelogram. इसके एंगल बाइसेक्टर. This one, this one, this one, this one. ये P, Q, R, S. इसे मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो प्रूव एंगल P, Q, R, S is रेक्टेंगल. और इसमें इतना सफिशिएंट है. अगर बेटा हम इसके अपोजिट एंगल का सम कितना दिखा दें, 180 दिखा दें, तो ये क्या हो, सॉरी 90 दिखा दें हर एंगल का, तो सारे राइट एंगल हो जाएंगे. और राइट एंगल होंगे. एग्जांपल फर्स्ट किया था, अगर एक एंगल 90 का होगा तो क्या होता है, दिस इज द रेक्टेंगल. अब मैं वही प्रूव करूंगा. नहीं बेटा प्रूफ देखिए. एबीसीडी क्या गिवन है मुझे, इट इज अ पैरेललोग्राम. सो एक तरफ के कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हाफ इट डिवाइडेड बाय हाफ. हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 90. रीजन इज अगेन AS and DQ are bisect. Now half of angle A 1, half of angle D 2 is equal to 90. इसको as it is add दीजिए फर्स्ट इक्वेशन. Now angle 3 equal to angle 4 होगा. कौन हो जाएगा, that is a vertical opposite angle. Is it clear? Now in a triangle, इस ट्रायंगल में आ जाइए बेटे. In triangle APD, sum of all angle of a triangle is 180. Therefore angle 1 plus 2 plus 3 is equal to 180. 1 plus 2 I know that is 90 by equation first, and 3 is angle 4. इक्वल है दोनों, इक्वल रख दो. प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, that is minus 180 minus 90. So that is angle 4 is 90. Since one angle of quadrilateral is 90, so it is रेक्टेंगल. हमने प्रूव किया हुआ है पहले एग्जांपल में कि अगर एक एंगल क्वाड्रिलेटरल का 90 का हो तो क्या बन जाता है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज, चलिए देखिए. Before it, there is a important theorem, that is 8.8. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel. वो कह रहा प्रूव करें एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा कब, जब एक अपोजिट साइड्स की इक्वल और पैरेलल हो जाएगी. तो देखिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले इस थ्योरम को करेंगे और याद भी रखना है, अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटर के एक पेयर ऑफ साइड्स क्या दिया हो, इक्वल और पैरेलल, तो वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाता है, दैट इज पैरेललोग्राम. तो वही हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको. दैट इज थ्योरम 8.8. दिस इज ए क्वाड्रिलेटर एंड इसका एक पेयर, इट इज गिवन इक्वल एंड पैरेलल, दैट इज गिवन AB पैरेलल टू CD और AB इक्वल टू CD. ये गिवन है. क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि ABCD को क्या दिखाना है मुझे, that is a parallelogram. अब ध्यान भी रखना है, if any quadrilateral whose one pair is equal and parallel, that quadrilateral is a parallelogram. किसी भी क्वाड्रिलेटर का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो दैट क्वाड्रिलेटर क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. तो यही प्रूव करके दिखाएंगे हम. इसमें बेटे कंस्ट्रक्शन कर लीजिए. व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन A to C. नाउ प्रूफ. बेटा आपको दो दिख रहे हैं ट्राइंगल, लीजिए. एक तो ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन विच मुझे पता है AB इक्वल है किसके, इसे कन्वर्ट दिखाऊंगा मैं CD के. कहां से आया, दैट इज गिवन, मुझे गिवन था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि लाइंस भी पैरेलल थी.
वही भी गिवन था। अगर लाइंस पैरेलल है तो फिर ये लाइंस पैरेलल दे रखी थी इसके, तो फिर अल्टरनेटिव दे रहा है एंगल आपस में इक्वल होगा। नेक्स्ट इज AC AC, यस कॉमन। नाउ प्रॉपर्टी इज SAS, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, ओ सॉरी सारी साइड्स और एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मैंने ले लिया BC इक्वल टू AD बाई CB CD। अब हमें पता है बेटा AB इक्वल हो गया CD के, ये दिया ही हुआ था हमने, और हमने प्रूव करा BC इक्वल है किसके, AC के, रूट एबव गिवन। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटर की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो मैंने थ्योरम पढ़वाई थी, करनी नहीं थी मैंने, कि प्रॉपर्टी याद करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इफ एनी क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल दैट इज पैरेललोग्राम। अब अपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो ABCD क्या बनेगा, दैट इज पैरेललोग्राम। अब आपने इसे याद भी रखना है, इफ वन पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल एंड पैरेलल देन दिस क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम। ये यूज होगा बेटे आपका पूरी क्वेश्चंस में। इज इट क्लियर माय डियर? सो इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस एक्सरसाइज 8.1। बिफोर इट एक क्वेश्चन और करा दूंगा, एक्सरसाइज 1.8.1 का मोस्ट इंपोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन, ये पेपर में कई बार आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो, लेट द फर्स्ट एंगल इज 3x, सेकंड एंगल इज 5x, रेशियो में दिया हुआ है, थर्ड एंगल इज 9x, फोर्थ एंगल इज 13x। मुझे ऑल एंगल फाइंड करने हैं। हम किस में चल रहे हैं बेटे, क्वाड्रिलेटर में, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की थी ऐसी एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटर की हमने प्रूव की थी। नाउ व्हाट इज A? 3x, B is 5x, C is 9x and D is 13x। ये 17 30x, ये आएगा इस तरह का क्वेश्चन जरूर पेपर में 2 नंबर का। 360 अपॉन एक नंबर का भी आ सकता है 12 का, 12 आ गया, एक्स वैल्यू यहाँ पुट करो। फर्स्ट एंगल कितने का आ गया, 3 into 12 दैट इज 36। सेकंड एंगल 5 into 12 दैट इज 60। थर्ड एंगल इज 9 into 12 108 एंड फोर्थ एंगल इज 13 into 12 दैट इज 156। दिस इज योर आगे बात समझ में? इज इट क्लियर माय डियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर।